Hello student, welcome to my YouTube channel Science Clip. Today we are discussing about chapter light. So this is the very interesting phenomena of science, light. So we will talk about in this session the general things about light. So student, what is the light? Light, it is a form of energy. इसका मतलब है लाइट एक एनर्जी का फॉर्म है. एक लाइट क्या होती है? एक एनर्जी होती है. इट इज ए एनर्जी. इज दैट क्लियर? ओके. So it means light is a form of energy. It is a form of energy. ये एक एनर्जी का फॉर्म है. ओके. सो ये हमें किस तरीके से हेल्प करती है? सो लाइट गिव्स अस द सेंसेशन ऑफ साइट ऑफ विजन. तो देखने का सेंसेशन प्रोवाइड करती है ये लाइट. जो भी चीजें हमारे आसपास दिखाई देती है because of the light, because there is a light. When the light falls on that object and the object reflect the light to back, and these reflected lights reach our eyes, and then our eyes sense these light and brain able to see these whatever the objects. ठीक है? तो इस तरीके से हम देख पाते हैं. By this way we can see the things because of the light. If there is no light, we are unable to see the objects. Okay. So it means the second points about the light is it gives sensation to the sight of vision. Sight of vision. ठीक है, देखने का सेंसेशन हमें प्रोवाइड करता है लाइट. ओके, दिस इज द अबाउट द लाइट. नाउ द नेक्स्ट वन, next is ray of light. What is the ray of light? As we know about, light always travel in a straight line. Is that clear? So this is the movement of light. So by this way we can make the one sentence, ray of light. If the light moves in a straight line and we draw a line in the direction of propagation of light, जिस डायरेक्शन में लाइट प्रोपोगेट कर रही है, प्रोपोगेट मीन्स वेव मूवमेंट. क्लियर? लाइट मूवमेंट. लाइट कैसे मूव कर रही है, मूवमेंट क्या है उसका, किस डायरेक्शन में. तो जिस डायरेक्शन में वो लाइट मूव कर रही है, तो वहां पर अपन अगर कोई लाइन ड्रॉ करते हैं तो उस लाइन को हम बोलते हैं रे ऑफ लाइट. इज दैट क्लियर? अ लाइन ड्रॉन इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ लाइट इज कॉल्ड द रे ऑफ लाइट. ओके, नेक्स्ट वन मोर थिंग्स अबाउट बीम ऑफ लाइट. व्हाट इज द नेक्स्ट? बीम ऑफ लाइट. ये बीम ऑफ लाइट क्या है? बीम ऑफ लाइट, when these ray of light, these rays of light, if they propagate in together form, अगर ये rays of light एक साथ propagate करती है, move करती है, तो उस पूरे बंडल rays of light के पूरे बंडल्स को हम बोलते हैं beam of light. फॉर एग्जाम्पल लेजर लाइट. तो लेजर लाइट से जो लाइट निकलती है उसमें रेज के बंडल्स होते हैं. ठीक है, वो बहुत सारे रेज के बंडल्स एक साथ मूव करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं बीम ऑफ लाइट. So like this one, rays of light collectively move in a particular direction. So this collectively rays of light called the beam of light. Is that clear? Okay, I hope you better understand. Okay, one more things about the beam of light. Here is the types of beam of light. So how many types of beam of light? First is parallel beam of light, and second is divergent beam of light, and third is convergent beam of light. What is the parallel beam of light? When a group of light rays parallel to each other. Clear? जब ये parallel, ये जो rays of light है वो parallel होती है एक दूसरे के और फिर ट्रेवल करती है, तो ऐसे beam of light को हम बोलते हैं parallel beam of light. Like this one, these rays of light parallel to each other and propagate from the source of light. source of light से वो propagate कर रही है. Is that clear? ठीक है, तो ऐसे बीम ऑफ लाइट को हम बोलेंगे पैरेलल बीम ऑफ लाइट. ठीक है, वी कैन मेक द डायग्राम लाइक दिस वन. Such kind of bundle of light is called the parallel beam of light because these rays of light parallel to each other. Okay, next, divergent beam of light. Divergent means spread out. When the rays of light, it means the group of light rays, जब लाइट रेज का ग्रुप, ठीक है, सोर्स ऑफ लाइट से निकलता है और वो क्या करता है, फैलता है. क्या करता है, वो स्प्रेड आउट हो जाता है. तो ऐसे बीम ऑफ लाइट को हम बोलते हैं डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट. हाउ वी कैन express like this one, spread out in all the direction,
like this one. So from the source of light, these group of rays of light spread out in the all the direction. So this type of beam of light is called the divergent beam of light. Clear? Okay. Next is convergent beam of light. अभी convergent beam of light क्या होता है? Convergent beam of light means when a group of light rays meeting at a point. ये group of light rays जब एक साथ किसी पॉइंट पे आके मीट करते हैं, मिल जाते हैं, तो इस टाइप के बीम ऑफ लाइट को हम बोलते हैं कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट. मान लो किसी सोर्स ऑफ लाइट से, कोई भी सोर्स है जहां से हम लाइट प्रोड्यूस कर रहे हैं, इमर्जेंट कर रहे हैं, ठीक है, एमिट कर रहे हैं, तो वहां से लाइट निकल रही है और वो लाइट आगे जाके एक जगह क्या हो रही है, मीट हो रही है, ठीक है, मिल रही है. तो ऐसे ग्रुप ऑफ लाइट रेस को हम बोलते हैं कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट. दिस इज द मीटिंग पॉइंट वेयर द लाइट्स meet. So these group of rays of light meet at a point, clear, and such kind of beam of light called the convergent beam of light because these group of light rays converge at a point. वो एक पॉइंट पे आके कन्वर्ज हो जाती है, मिल जाती है, ठीक है. तो इस टाइप के बीम ऑफ लाइट को हम बोलते हैं कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट. इफ द ग्रुप ऑफ लाइट रेज spread out in all the direction, such kind of beam of light is called the divergent beam of light because they diverge the light. Light diverge हो जाती है all the different directions. Is that clear? And parallel beam of light means a group of light rays which are parallel to each other and propagate in a particular direction. So we can say such kind of beam of light is called the parallel beam of light. I hope all the students understood these terms about the light. So student, let's talk about properties of light. So what is the first property of light? लाइट की फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? लाइट की पहली प्रॉपर्टी यह है कि लाइट ऑलवेज मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन. वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में मूव करती है. इज दैट क्लियर? सो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज ऑफ लाइट ऑलवेज travel in a straight line. And what will be the second property of light? Light has dual nature. लाइट की दो नेचर होती है, एक वेव नेचर एंड द अदर इज पार्टिकल नेचर. इज दैट क्लियर? ओके. सो इट मीन्स वी कैन से लाइट शो द टू नेचर. दो नेचर शो करती है, एक नहीं. अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी, तो वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग लाइट इज कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विच डू नॉट रिक्वायर्ड ए मीडियम टू प्रोपगेशन. मीडियम मीन्स सॉलिड, लिक्विड, गैस. इट मीन्स ये लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है जिसको ट्रांसफर होने में या ट्रांसफर करने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए, प्रोपोगेट करने के लिए उसको किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है. ठीक है. सो वी कैन से दैट अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी क्या बोलती है कि लाइट एक वेव की तरह मूव करती है. ठीक है, वेव की तरह नेचर शो करती है. सो और उस वेव नेचर को, उस वेव लाइट वेव को क्या नाम दिया गया? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. और इनको प्रोपोगेट करने के लिए कोई मीडियम की जरूरत नहीं होती. इज दैट क्लियर? बट पार्टिकल थ्योरी क्या बोलती है? अकॉर्डिंग टू पार्टिकल थ्योरी लाइट इज कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल्स. लाइट किसके बने होते हैं? पार्टिकल्स के बने होते हैं. इज दैट क्लियर? एंड दे मूव इन ए स्ट्रेट लाइन, और वो स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं एट ए वेरी हाई स्पीड. बहुत ही हाई स्पीड में ये पार्टिकल्स क्या करते हैं? मूव करते हैं. ठीक है. तो वी कैन से दैट अकॉर्डिंग टू पार्टिकल थ्योरी कि लाइट जो होती है वो पार्टिकल नेचर भी शो करती है, पार्टिकल्स फॉर्म में वो मूव कर रही है. इज दैट क्लियर? सो वी कैन से दैट light has dual nature. What are these dual nature? First is wave nature and second is particle nature. Is that clear? Okay. Next property of light. Next property of light क्या है? Speed of light. Light speed. Light की speed की बात करें तो जो light की speed होती है वैक्यूम में, the speed of light in the vacuum is 3 into 10 the power
8 meter per second. Clear? So next property is of light is speed of light in vacuum. What is the vacuum? A place where is no medium. एक वो जगह जहां पर कोई भी मीडियम नहीं है टू प्रोपोगेट. ठीक है, लाइट को प्रोपोगेट करने के लिए कोई भी मीडियम नहीं है, तो इसको हम बोलते हैं वैक्यूम. तो उस वैक्यूम में लाइट की जो स्पीड होगी वो मैक्सिमम स्पीड होगी, और वो स्पीड है 3 मल्टीप्लाई 10⁸ मीटर पर सेकेंड. सो दिस स्पीड what would be in kilometer per second? So we can say in kilometer per second is 3 multiply 10⁵ kilometer per second. To convert a small unit into the larger unit, you have to give the divide by the 1000, because 1 kilometer, how much meter? 1000. So we divide the 1000 in 10⁸. So 30 is there. So 30 cancel out from 10⁸. So that's why remaining how much zero is remain? 10⁵. So by this way we convert the meter per second in kilometer per second. Clear? Okay. How we can write one more about speed? और कैसे लिख सकते हैं? और ऐसे लिख सकते हैं 3 lakh kilometer per second. It means the light travel in 1 second how much kilometer? 3 lakh kilometer. 3 लाख किलोमीटर वो एक सेकंड में ट्रेवल करती है. ये लाइट की स्पीड होती है वैक्यूम के अंदर. इज दैट क्लियर? ओके. नाउ वी विल टॉक अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक इज मिरर. व्हाट इज द मिरर? क्लियर? मिरर क्या होता है एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मिरर एंड देयर टाइप्स एंड देयर डेफिनेशंस एंड अगेन देयर टाइप्स वी विल डिस्कस. Okay student, what is the mirror? So this is our next new topic, mirror. Mirror क्या होता है? Mirror we can say like a shiny smooth surface of glass which reflect the light. ग्लास का स्मूथी शाइनी सरफेस जो क्या करता है, लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है. जो लाइट उसके ऊपर गिरती है, which are the light falls on the surface of this reflecting surface of glass, and if that reflecting surface reflect the light, we can say this is the mirror. Is that clear? So इसको हम बोल सकते हैं कि मिरर क्या होता है? मिरर इज ए स्मूथ शाइनी सरफेस which reflects the light, जो लाइट को रिफ्लेक्ट करता है. Is that clear? Okay. Now the next, how many types of mirror? मिरर कितने टाइप के होते हैं? फर्स्ट इज प्लेन मिरर, सेकंड इज स्फेरिकल मिरर. तो एक होता है प्लेन मिरर, एक होता है स्फेरिकल मिरर. ठीक है, तो हम बात करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल प्लेन मिरर की. प्लेन मिरर. अब देखो प्लेन मिरर क्या होता है. व्हाट इज द प्लेन मिरर? ठीक है, ए प्लेन मिरर विद अ फ्लैट रिफ्लेक्टिंग सरफेस. एक प्लेन मिरर क्या होता है? जिसका एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस एक फ्लैट होता है, प्लेन होता है. ठीक है, ऐसे मिरर को हम बोलते हैं प्लेन मिरर. ठीक है, प्लेन मिरर with a flat reflecting surface. Is that clear? Plane mirror with a flat reflecting surface is called a plane mirror. Is that clear? वो plane mirror होता है जिसका reflecting surface plane हो, flat हो. Clear? Okay. So one more. Okay. और क्या है plane mirror के बारे में? Plane mirror. How the image formed in a plane mirror? It means we will talk about the image formation in a plane mirror. Plane mirror में image कैसे बनती है ये देखते हैं. इसके बाद after then we will talk about the properties of image which is formed by the plane mirror. जो plane mirror image बनाती है उसकी properties क्या है compared to the object, whatever the object placed in front of the plane mirror. So let's move image formation in plane mirror. How the image formed in a plane mirror? Image formation इन प्लेन मिरर. प्लेन मिरर में इमेज कैसे बनती है ये समझने की कोशिश करना कि जो मिरर आप डेली मॉर्निंग में जिसमें आप अपना फेस देखते हो, व्हाटएवर जो भी आप तैयार होते हो, उस मिरर में जो आपकी इमेज बनती है वो किस तरीके से बनती है और उसकी प्रॉपर्टीज क्या है. क्लियर? सो लेट्स अज्यूम दिस इज ए मिरर एंड whose one side of this plane mirror is polished by the silvery
मेटल, सिल्वर से इसको पीछे की साइड से क्या किया गया है, पॉलिश किया गया है। तो एक साइड से सिल्वरी कोटिंग की है और उसके ऊपर फिर रेड कलर का पेंट कर दिया जाता है। इज दैट क्लियर? सो नाउ इट इज ए प्लेन मिरर। अब ये क्या हो गया, एक प्लेन मिरर हो गया। एक ट्रांसपेरेंट ग्लास होता है, इट इज ए ट्रांसपेरेंट ग्लास एंड its other side is coating with the silvery metal with the red paint, and now it's ready to reflect the light, and it is a mirror. How the mirror form the image of the object? For example, object placed in front of the mirror like this. ये एक ऑब्जेक्ट रखा है, एक पॉल है, इट इज ए पॉल एंड प्लेस इन फ्रंट ऑफ द मिरर। मिरर के सामने कोई भी ऑब्जेक्ट है, ह्यूमंस है, एनी ऑफ द ऑब्जेक्ट प्लेस in front of the mirror, and if the, for example, if the light comes from here, अगर कोई लाइट यहां से आती है, यहां से मिरर के ऊपर जाती है ऐसे, क्लियर? यहां से वो लाइट इंसिडेंट हो रही है। ये कौन सी लाइट है? इंसिडेंट रे। ये इंसिडेंट रे लाइट है ये, ठीक है। जितने एंगल से, वॉट एवर द एंगल फॉर्म टू दिस प्रिंसिपल लाइन, ये इसको हम क्या बोल देंगे, प्रिंसिपल लाइन बोल देंगे, ठीक है। जितने एंगल से वो इंसिडेंट होती है, सेम एंगल से वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी, क्लियर? ऐसे यूं आती है, कोई सोर्स ऑफ लाइट से आती है, लाइट रे ऑफ लाइट आती है और इट इंसिडेंट ऑन द सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ मिरर। मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे ये इंसिडेंट होती है, इंसिडेंट रे, और सेम एंगल बनाते हुए ये वापस रिफ्लेक्ट होती है इन द सेम मीडियम, बाउंस बैक, क्लियर? एंड दिस लाइट अगेन रिफ्लेक्ट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट एंड मूव्स टुवर्ड द मिरर। अब यहां पर कितने का एंगल बन रहा है, ठीक है। यहां पर अगर नॉर्मल लाइन ये ऐसे बना दे, नॉर्मल लाइन, और ये अपनी नॉर्मल लाइन से कितना एंगल बनाएगी, 0 डिग्री एंगल। बस उसी 0 डिग्री एंगल से वापस ये क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, क्लियर? जैसी आई थी वैसी रिफ्लेक्ट हो जाएगी, बिकॉज अपनी नॉर्मल लाइन से वो कितना डिग्री का एंगल बना रही है, 0 डिग्री का एंगल बना रही है। ओके, नाउ लिसन, इफ वी एक्सटेंड दीज रिफ्लेक्टेड रेज टू बैक, इन रिफ्लेक्टेड रेज को बैक साइड में अगर हम एक्सटेंड करते हैं तो क्या होता है? सो लेट्स सी। So students, see, if we extend these reflected rays to back side, they meet at a point. वो एक point पे आके मिल जाती है, clear? So it means here image is formed. यहाँ पर एक image बनती है, clear? So we can give the name of this object, real object. This is the real object. Oh, we given the name of this object AB, and the image is formed in the mirror is A dash B dash image of this object, clear? So by this way, the image is formed in the plane mirror by the reflection of light, when the rays of light incident on the reflecting surface of plane mirror, and plane mirror reflect these light which are coming from the rare medium. Okay, किसी मीडियम से आती है, एयर मीडियम से आती है, और ये लाइट को वापस रिफ्लेक्ट करके उसको वापस बाउंस बैक करती है एंड सेंड बैक टू द सेम मीडियम, उसी मीडियम में वापस सेंड कर देती है। ओके, सो बाय दिस वे यू कैन सी दैट द ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड, द इमेज ऑफ दिस ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड इन द मिरर टू द बैक साइड, क्लियर? सो फ्रॉम this diagram we can make the some properties of image which are formed by the plane mirror of the object, ठीक है। प्लेन मिरर ने ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनाई इस तरीके से, तो इसको देख के हम कुछ प्रॉपर्टीज कंक्लूड कर सकते हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है, क्या हो सकती है इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी, किसकी? इमेज की। जो प्लेन मिरर इस ऑब्जेक्ट की जो इमेज बना रहा है उसके अंदर इसकी क्या प्रॉपर्टीज हो सकती है? तो फर्स्ट प्रॉपर्टी यह है कि इमेज, इट मींस इट फॉर्म्स वर्चुअल इमेज। प्लेन मिरर ऑलवेज form the virtual image of real object, clear? First property is it forms always virtual image of real object. If the object is virtual object, then it forms the real image. How? So first property is plane mirror always form the virtual image of real object. Virtual image of real object, मतलब इट मींस प्लेन मिरर के सामने अगर ऑब्जेक्ट रियल है तो वो प्लेन मिरर में जो इमेज बनेगी वो होगी वर्चुअल, इट मींस वो रियल इमेज नहीं होगी। रियल इमेज और वर्चुअल इमेज में क्या डिफरेंस होता है? रियल इमेज कैन बी ऑब्टेन ऑन ए स्क्रीन एंड वर्चुअल इमेज कैन नॉट ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन, इट सीम्स फॉर्म इन द मिरर, ठीक है। ये जो वर्चुअल इमेज है वो मिरर के अंदर बनती हुई हमें लगती है, तो ऐसी इमेज को हम बोलते हैं वर्चुअल इमेज। ओके, सो सी हियर इज द रियल ऑब्जेक्ट एंड दीज आर द incident ray which are incident on the reflecting surface, and the reflecting surface reflect these incident ray to a particular direction.
ये रेस रिफ्लेक्ट इसके ऊपर इंसिडेंट हो रही है और फिर रिफ्लेक्ट हो रही है। इफ वी एक्सटेंड दिस रिफ्लेक्टिंग रे टू बैक साइड, इट मीट द एट अ पॉइंट एंड इट फॉर्म द वर्चुअल इमेज। ये क्या बनाती है? वर्चुअल इमेज बनाती है। अब इसको और किस तरीके से डीपली हम समझ सकते हैं? इफ द ऑब्जेक्ट इज वर्चुअल, ऑब्जेक्ट को आप क्या मान रहे हो? जो वर्चुअल इमेज है उसको अब आप क्या मान लिया आपने उसको कि वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। क्या ऑब्जेक्ट है? वर्चुअल ऑब्जेक्ट। तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट का क्या बनेगा? रियल इमेज। रियल इमेज ऑफ virtual object. How the virtual object form the real image? Look, for example, lights, ray of light incident like this one. ये lights कुछ इस तरीके से इंसिडेंट हो रही है फ्रॉम द सोर्स ऑफ लाइट, किसी सोर्स ऑफ लाइट से लाइट ठीक है आती है और प्लेन मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे गिरती है। अब गिरने के बाद ये वापस रिफ्लेक्ट होकर एक पॉइंट पे आती है इस तरीके से, और यहाँ के रिफ्लेक्ट होकर यहाँ पर ये मैच कर रही है। तो यहाँ पर क्या बनेगा? हियर इमेज इज फॉर्म्ड। यहाँ पर इमेज बनेगा स्क्रीन के ऊपर। अब जो स्क्रीन पे इमेज बन रहा है वो इमेज कैसा होगा? रियल होगा। इफ वी एक्सटेंड दिस इंसिडेंट रे, अगर इस आती हुई रे को पीछे की तरफ लेके जाते हैं तो यहां होता है वर्चुअल ऑब्जेक्ट। इसको हम बोलते हैं वर्चुअल ऑब्जेक्ट। इन दिस केस द रेज कम्स फ्रॉम दिस पॉइंट। इस केस में रेज यहां से निकलती है एंड इंसिडेंट ऑन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, एंड रिफ्लेक्टिंग सरफेस रिफ्लेक्ट द रेज इन दिस वे, एंड द रिफ्लेक्टेड रे when we back extend the back side, it meet at a point and it form the virtual image. reflected ray को पीछे लेके जाते हैं तो क्या बन रहा है? virtual image। लेकिन यहां क्या हो रहा है? rays of light कहीं से आ रही है, इंसिडेंट हो रही है, इंसिडेंट होने के बाद वो वापस रिफ्लेक्ट हो रही है और रिफ्लेक्ट होने के बाद एक पॉइंट पर आके मिल रही है। अब ये हम बात कर रहे हैं रिफ्लेक्ट रे नहीं है, ये है इंसिडेंट रे। इफ द इंसिडेंट रे एक्सटेंड टू बैक साइड, इट मीट एट ए पॉइंट। एक पॉइंट पे आके रुक जाती है, एक पॉइंट पे आके मिल जाती है। ठीक है, तो जिस पॉइंट पे मिलती है वहां क्या होता है? वर्चुअल ऑब्जेक्ट। आपको ऐसा लगता है कि एक्चुअल में लाइट अंदर से आ रही है, मतलब इसके मिरर के अंदर कोई लाइट है जो बाहर की तरफ आ रही है और बाहर आके मिल रही है, एक पॉइंट बना रही है। ठीक है, और वो पॉइंट किसका इमेज बना रहा है? उस वर्चुअल, जो अंदर की साइड में आपको लग रहा है कि लाइट अंदर से आ रही है, उस लाइट सोर्स का इमेज बाहर स्क्रीन पे बनता है। तो उस इमेज को हम बोलेंगे रियल इमेज, और ऑब्जेक्ट क्या है? आपका वर्चुअल है, यानी रियल ऑब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि मिरर के पीछे है, लग रहा है आपको कि अंदर से लाइट सोर्स आ रही है। ठीक है, सो लाइक दिस वे वी कैन से प्लेन मिरर फॉर्म्स द रियल इमेज ऑफ plane mirror always form the virtual image of the real object, and it may also form the real image of the virtual object. इसको कंसेप्ट को ध्यान रखना। नेक्स्ट, आप जो कंसेप्ट आ रहे हैं इसके जो प्रॉपर्टीज आ रही है वो बहुत ही इजी है, और ये फर्स्ट प्रॉपर्टी थी, इमेज फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर जो इमेज बनाता है वो फर्स्ट प्रॉपर्टी मैंने बता दी है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, मिरर से ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है d, ऑलवेज इक्वल टू द डिस्टेंस d days फ्रॉम द इमेज, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर। मिरर से इमेज की जो डिस्टेंस है वो हमेशा इक्वल होगी किसके? द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। मिरर से ऑब्जेक्ट के बीच की जो डिस्टेंस है वो इक्वल होगी इसके, यानी हम वी कैन से d ऑलवेज इक्वल टू द d डेज। d मिरर से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, d डेज इमेज की मिरर से डिस्टेंस। इज दैट क्लियर? ओके, नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है लेटरल इन्वर्जन ऑफ इमेज। मतलब ऑब्जेक्ट का जो लेटरल साइड्स होती है, ये प्लेन मिरर क्या करता है? उसकी लेटरल साइड्स को इन्वर्ट कर देता है, इन्वर्जन कर देता है। मतलब लेफ्ट साइड, आप मिरर के सामने खड़े हो जाओगे तो आप लेफ्ट हैंड जब आप राइज करते हो तो मिरर में जो इमेज होगी वो आपको राइट हैंड राइज करती हुई लगेगी, और राइट हैंड मिरर में क्या लगेगा? लेफ्ट हैंड। इज दैट क्लियर? तो इसका मतलब है इट मीन्स द मिरर कन्वर्ट द साइड्स इनटू द लेटरली। ठीक है, साइड्स को लेटरली कन्वर्ट करता है। सो द इमेज फॉर्म्ड बाय ए प्लेन मिरर इज साइडवेज कन्वर्टेड। साइड जो साइड्स होती है, लेटरल साइड्स होती है, उनको इन्वर्टेड कर देता है। क्या कर देता है? इन्वर्ट कर देता है। ठीक है, राइट साइड लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड राइट साइड। इज दैट क्लियर? नाउ द नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ प्लेन मिरर इज द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की जो हाइट है, ठीक है, इज इक्वल टू द साइज ऑफ इमेज। जितनी साइज ऑब्जेक्ट की है उतनी ही साइज की इमेज बनेगी। ठीक है, जितनी डिस्टेंस पे मिरर के सामने ऑब्जेक्ट खड़ा है उतनी डिस्टेंस पे इमेज मिरर के सामने होगा। एंड वी कैन से द लास्ट प्रॉपर्टी व्हाट? कौन सी प्रॉपर्टी है? कि द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल द साइज ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर। प्लेन मिरर जो इमेज बनाता है ऑब्जेक्ट की, उसकी जो साइज है वो ऑब्जेक्ट के सेम साइज की बराबर की बनेगी। इज दैट क्लियर? ओके, बट वन मोर पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट इज द मिनिमम साइज ऑफ द प्लेन मिरर टू सी द फुल साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट की फुल साइज देखने के लिए प्लेन मिरर की जो साइज होनी चाहिए मिनिमम, वो कितनी होनी चाहिए? तो बेटा इसकी जो साइज होगी, इट विल बी द हाफ साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट which is placed in front of the mirror। मिरर के सामने जो ऑब्जेक्ट आप रख रहे हो, इसकी हाफ साइज का अगर प्लेन मिरर लोगे तो उसकी इमेज, उस ऑब्जेक्ट की इमेज प्लेन मिरर में
फुल इमेज बनेगी. So to get the full image of the object in a plane mirror, we must be required the half size of the object. Clear? Okay. बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है. ये इस लाइन से कभी कभी क्वेश्चंस बहुत बार पूछा गया. Okay. So this is the plane mirror. We have discussed the plane mirror. What is the plane mirror? Plane mirror, and the image formation by the plane mirror and the properties of plane mirror. Now the turn of spherical mirror. What are the spherical mirrors? Spherical mirrors क्या होते हैं? Now we will discuss about spherical mirror. What is the spherical mirror? This is the last topic of this session. Spherical mirror. We can understand this topic, this term by this way. If the mirror whose reflecting surface is the part of a hollow sphere of a glass, ठीक है, कोई ग्लास है और उस ग्लास का जो hollow sphere है, like this one, ठीक है, उसका जो पार्ट है, ठीक है, कोई पार्ट जो क्या करता है, उसकी एक सरफेस क्या करती है, उस लाइट को क्या करती है, रिफ्लेक्ट करती है. तो ऐसे hollow sphere of the glass whose surface is reflecting is called a spherical mirror. ऐसे मिरर को हम बोलते हैं स्फेरिकल मिरर, जिसका स्फेयर कर्व्ड हो और उसमें से एक सरफेस पॉलिश्ड होती है और एक सरफेस लाइट को रिफ्लेक्ट करती है. क्लियर? सो वी कैन से अ मिरर whose रिफ्लेक्टिंग सरफेस, एक ऐसा मिरर जिसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है इज द पार्ट ऑफ ए हॉलो स्फेयर ऑफ ए ग्लास, जो ग्लास के हॉलो स्फेयर का एक पार्ट होता है. फॉर एग्जांपल ये मान लो एक हॉलो स्फेयर है और इसका ये एक पार्ट है, इस हॉलो स्फेयर ऑफ ग्लास का एक क्या है, पार्ट है. ठीक है, इसी पार्ट के जस्ट एक साइड हम पॉलिश कर देते हैं. दिस डेज 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 इंडिकेट द पॉलिश सरफेस. ये किसको इंडिकेट कर रही है कि ये साइड पॉलिश्ड है, और जो दूसरी साइड में डेज डेज नहीं है वो किसको इंडिकेट कर रही है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस को. तो ऐसा हॉलो स्फेयर ऑफ ग्लास जिसकी एक सरफेस क्या कर रही है, लाइट को रिफ्लेक्ट करती है, ऐसे मिरर को हम बोलते हैं स्फेरिकल मिरर. एंड द स्फेरिकल मिरर आर ऑफ टू टाइप्स. ये दो टाइप के स्फेरिकल मिरर्स होते हैं. एक होता है कॉनकेव स्फेरिकल मिरर एंड एक होता है कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर. वी कैन अंडरस्टैंड दिस टाइप्स ऑफ मिरर लाइक फ्रॉम दिस spoon. You can understand. See, this is the spoon and look here. This is the hollow part of the sphere. ये एक किसका पार्ट है, एक hollow sphere का एक पार्ट है. Okay. Now you can see its surface is curved. इसकी सरफेस क्या है, कर्व्ड है. एक आउटसाइड की तरफ निकली हुई है और एक इनर साइड है. क्लियर? तो आउटसाइड की जो सरफेस है, दिस आउटसाइड सरफेस वी कैन से दिस सरफेस इज कॉन्वेक्स सरफेस. इस सरफेस को आप क्या बोलोगे, जो बाहर की तरफ निकली हुई है, कॉन्वेक्स सरफेस. और जो अंदर की तरफ जो सरफेस है, इनवर्ड सरफेस, क्लियर, दैट सरफेस इज कॉल्ड द कॉनकेव. इट फॉर्म द लाइक द कॉनकेव शेप. जैसे केव होती है ना, केव, ठीक है, उसकी शेप जैसी है ये सरफेस. इसको इसलिए नाम दिया कॉनकेव शेप. ठीक है, तो कॉनकेव सरफेस है ये, और बाहर की तरफ ब्लैकिंग आउट की हुई है, उसको हम बोलते हैं कॉन्वेक्स सरफेस. इज दैट क्लियर? ओके, बाय ऑन द बेस ऑफ दिस वी कैन मेक द टू टाइप्स ऑफ दिस स्फेरिकल मिरर. फर्स्ट इज कॉनकेव स्फेरिकल मिरर एंड कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर. इसमें क्या होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल विल टॉक अबाउट द कॉनकेव स्फेरिकल मिरर. कॉनकेव स्फेरिकल मिरर में क्या होता है कि a spherical mirror whose reflecting surface is the inward, जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस तो क्या है, इनवर्ड है, और पॉलिश सरफेस क्या है, आउटवर्ड. ठीक है, तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगी कॉनकेव एंड पॉलिश्ड, जिसको पीछे से पॉलिश किया है, दैट इज द आउटवर्ड सरफेस. ठीक है, वो बाहर वाली सरफेस को हम बोलेंगे पॉलिश सरफेस, और अंदर से जो लाइट को रिफ्लेक्ट कर रही है उसको बोलेंगे कॉनकेव सरफेस. सो सच काइंड ऑफ मिरर इज कॉल्ड द कॉनकेव मिरर. अंडरस्टूड? ओके, नाउ द कॉन्वेक्स मिरर. कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है? कॉन्वेक्स मिरर अ मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग, या हम बोल सकते हैं अ मिरर, अ स्फेरिकल मिरर हुज पॉलिश सरफेस कैसी, कौन सी होगी, इनवर्ड इज सरफेस इज द पॉलिश सरफेस, जिसको अंदर से पॉलिश किया गया है सिल्वरली. क्लियर? और फिर जो उसके आउटवर्ड सरफेस है, इट इज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस. उसके आउटवर्ड सरफेस इज द, इट मींस द कॉन्वेक्स सरफेस इज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस एंड द पॉलिश सरफेस इज इनवर्ड सरफेस. So such kind of mirror is called a convex mirror. I hope you have understood better. Okay, now the one more properties about the concave mirror. Concave mirror convert all the lights which are coming from the source of light. मतलब ये concave mirror क्या करता है कि जितनी भी लाइट सोर्स से आती है, मान लो कोई टॉर्च से आप लाइट इंसिडेंट कर रहे हो इस मिरर के ऊपर, तो these rays of light parallel to each other and they incident on this concave mirror, and the concave mirror convert these पैरेलल रेज एट अ पॉइंट. एक पॉइंट पर ये कन्वर्ट कर देती है लाइक दिस वन, और ये भी. तो इस पॉइंट पे आके ये सारी की सारी लाइट क्या हो रही है, मिल रही है. तो वी कैन से दीज पैरेलल रेज इंसिडेंट ऑन दिस कॉनकेव मिरर एंड द कॉनकेव मिरर कन्वर्ट दीज रेज एट अ पॉइंट. एक पॉइंट पर ये कन्वर्ट कर देती है. दैट्स व्हाई दिस मिरर आल्सो नोन एज द कन्वर्जिंग मिरर. कन्वर्जिंग मिरर, इसलिए इसको कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं. कौन सा मिरर बोलते हैं? कन्वर्जिंग मिरर. क्लियर? एंड द अदर हैंड कॉन्वेक्स मिरर. In the convex mirror, if the rays of light incident on this convex mirror, जब ये कोई लाइट सोर्स से कोई रेज ऑफ लाइट इंसिडेंट होती है कॉन्वेक्स मिरर पे, तो कॉन्वेक्स मिरर क्या करता है, लाइट को रिफ्लेक्ट करके डिफरेंट डायरेक्शन में डाइवर्स कर देता है. क्लियर? लाइट को स्प्रेड आउट कर देता है, फैला देता है. इसलिए इस मिरर को हम डाइवर्जिंग मिरर भी बोलते हैं. हाउ
it diverts the light like this one. If these rays of light incident on the convex mirror reflect the light like this way. So see, when the rays of light incident on this mirror, जब लाइट रेज इसके ऊपर गिरती है तो ये लाइट रेज कुछ इस तरीके से बाहर निकलती है, फैल जाती है, ऐसे रिफ्लेक्ट करता है, फैलाते हुए स्प्रेड आउट करती हो, ठीक है। इफ वी एक्सटेंड दीज रिफ्लेक्टेड रे टू बैक साइड ऑफ द मिरर, अगर हम इस रेज को पीछे की साइड में अगर इंक्रीज करते हैं, बढ़ाते हैं, तो ये रेज ऑफ लाइट देखो यहाँ पर आके मिल रही है यहाँ पे। ओके, so you can see that these rays of light sprayed out by this mirror, so that's why this mirror also known as diverging mirror। तो क्या बोलेंगे इसको? diverging mirror भी बोल सकते हैं। Is that clear? So this is the spherical mirror and the types of spherical mirror, concave mirror and convex। Okay student, so in this session we have completed the light and the ray of light, beam of light and types of beam of light and the properties of light, and then we have discussed plane mirror, image formation in the plane mirror. It means the mirror and their types, plane mirror and spherical mirror, and their definitions, clear, and the image formation in plane mirror, the properties of image which are formed by the plane mirror, and in spherical mirror we have discussed types of spherical mirror and the spherical mirror definition, types of spherical mirror like concave mirror and convex mirror, and their image also. So next, in the next video we will discuss about the reflection of light.